عامر صاحب نے بات کی، کلاس اب کیس آ چکے، اب آگے کیا؟ اس طرف تو آئیں گے، لیکن بنیادی غلطی کیا ہے؟ انٹرنیشنل فورم پہ ہم نے صحیح طریقے سے اس چیز کو نہیں ہینڈل کیا. یہ بڑا یہ ریئر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انگلش کا ایک اس کا اب کیسے اظہار یا ایکسپریشن ہوتا ہے، آئی ٹولڈ یو سو، آئی ٹولڈ یو سو. وہ بندہ جب کبھی اس کی بات سچی نکل آئے نا تو وہ پورے محلے کو بتا رہا ہوتا ہے. میں پہلے تو دسیا نہیں سی یہی ہوئے گا، میں کیا نہیں سی کہ یہ ہونے لگے. میرا دل چاہ رہا ہے آج ہم عامر متین اور میں بھی، اس سے پہلے کہ ہم اس پہ کیس پہ فردر جائیں، وہ غلطیاں ہم بتانا چاہتے ہیں جس وجہ سے سارا کیس سٹے ہوا ہے. یہ بات ہم نے اپنے پروگرام میں، اپریل کی کون سی ڈیٹ ہے میرا خیال ہے ابھی آپ کو بتائیں گے، ہم نے 10 اپریل کو جب ان کا ٹویٹ آیا تھا کہ کلبھوشن صاحب کو پھانسی دی جائے، ان کا فیصلہ ہو گیا ہے یا دے دی، ان کو اناؤنس کر دی گئی ہے، اس شام کو اسی ٹائم پہ ہم نے پروگرام کیا تھا. ہم نے ایک پوائنٹ اس میں نقطہ اٹھایا تھا کہ پاکستان نے یہ غلطی کی ہے، انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. آج اسی فیصلے میں اٹھا کے دیکھ لیں، اسی فیصلوں کو بنیاد بنا کے انہوں نے سٹے کیا جو ہم نے اپنے 10 اپریل کے پروگرام میں پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جناب. اور وہ غلطی کیا تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ آپ چلیں واپس آئیں، اور وہ پروگرام کا میرا خیال ہے کلپس ذرا اس قوم کو سنائیں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں وی ٹولڈ یو سو. آج اس فیصلے میں اسی ہی بات کو انہوں نے بیس بنا کے اس کو سٹاپ کیا ہے جو ہم نے 10 اپریل کو بتایا تھا کہ پاکستان یہ بلنڈر مار رہا ہے، یہ غلطی کر رہا ہے، اور آج اسی کا آئی سی جے نے اسی کا ہی آج اس کا مینشن کر کے اسی کو بنایا. اب بریک کے بعد واپس آئیں گے، میں تھوڑا ٹھیک ہے بالکل ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. 10 اپریل کی کلاس نے جس طرح سے بات کی وہ کلپ بھی کوشش کریں گے آپ کو دکھانے کی. اس کے ساتھ ساتھ جو غلطیاں ہوئی ہیں جن کو بنیاد بنایا گیا اور یہ کیس ہم ہار چکے ہیں، ہمارے اگینسٹ فیصلہ. ایک بریک لیے واپس آئیں گے، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عالمی عدالت نے بھارتی جاسوس کی پھانسی کو فی الوقت روک دیا ہے. کلاسر صاحب، وہ کون سی غلطیاں ہیں ہماری جانب سے کی گئی جن کو بنیاد بنا کر ابھی وقتی طور پر اس کی پھانسی کو روکا گیا؟ 2-3 چیزیں ہیں. وہ میرا ہم نے پہلے بھی کہی تھی، عامر متین نے بھی کہی تھی کہ ہمیں اس کو یہ پروسیس پورے کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہیے تھا، اوپن رکھنا چاہیے تھا، اور انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے تھا تاکہ کوئی بھی پارٹی اپنے آپ کو اس کو وکٹم کے طور پر نہ پیش کرے. پرٹیکولر جب اس میں ڈیتھ سینٹینس انوالو تھی، 2 ملکوں کے ریلیشن شپ اس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. یہ بڑا ضروری تھا ہمارے لیے کہ ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ اور تمام ثبوت جو ہیں، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ آپ کو یہاں تک ہمیں جانا چاہیے تھا اگین کہ انڈیا انوالو تھا اس میں. صاف ظاہر ہے اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کی زیادہ سنی جاتی ہے، زیادہ اس کی ایکسیس ہے. پاکستانی فارن آفس اور بیگمات کی NGOs یہ چندہ اکٹھے کرنے کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ان کو. لہٰذا ہمیں اس پہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت تھی، زیادہ ان چیزوں کو دکھانے کی ضرورت تھی دنیا کو کہ یہ دیکھیں ایک جاسوس ہیں، ان کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہیں. ایک فیئر ٹرائل جو ہم ابھی آپ کو کلپ دکھائیں گے عامر صاحب نے کیا کہا تھا اس 10 اپریل کو کہ ہمیں اس ٹرائل کو کیسے اس کو کنڈکٹ ہونا چاہیے تھا، نمبر 1. دوسری جو ہم نے بات کی تھی جس پہ فیصلہ ہوا ہے، یہ میرے پاس یہ فیصلے کی کاپی ہے. 1 پوائنٹ پہ انہوں نے اس کو سٹے کیا سر، جو ہم نے اس دن اپنے پروگرام میں کہا تھا، وہ ہے کونسلر ایکسیس. انڈیا نے جا کے وہاں پہ کلیم کیا ہے اس میں ICJ میں کہ جناب ہم نے 1 سال میں 10-12 دفعہ ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر یہ ہمارا نیشنل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں ملنے دیں، اس سے ملاقات کرنے دیں اور ہمیں بیٹھ کے کنفرم کرنے دیں. پاکستان ان کو کونسلر ایکسیس نہیں دی تھی. یہ انٹرنیشنل کورٹ کا انہوں نے اس میں جو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ابھی ہم نے گرین کی ہوئی ہیں، انہوں نے اسی کو ہی مارک کر کے کہا ہے کہ پاکستان نے اس کو انڈیا کو اپنے نیشنل کو ملنے کی اجازت نہیں دی. اب 3-4 بڑے 5 اس میں پوائنٹس ہیں جس پہ انہوں نے فیصلے کو بیس کیا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر لوگ کہہ رہے ہیں نا، ایک میں کسی کا اعتراض دانشور کا سن رہا تھا کہ جناب کے بیٹھے بٹھائے انہوں نے یکدم کیسے اٹھا لیا اس کو. اس میں ایک کلاس ہوتی ہے ارجنسی کی ہوتی ہے ڈیتھ میٹر ریلیٹڈ، کہ اگر آپ جا کے اپلیکیشن دینا کہ فلاں جو پرزنر ہے اس کو سزائے موت فلاں ملک دینا چاہتا ہے، آپ اس کو فوراً ٹیک اپ کریں. یہ کنونشن میں باقاعدہ اس کی پروویژن ہے کہ وہ ارجنسی کے تحت وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں. ارجنسی ہی ایشو تھا، اسی پہ انہوں نے رکھا ہے کہ جناب باقی مقدمہ بعد میں سنیں، اس کو ہمیں ڈائریکٹ پھانسی لگا دیں گے. ارجنسی ہے نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے اس میں ایک ایلیمنٹ ارجنسی کے بات ہوتے رسک. یہ پاکستان کے لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں انہوں نے یکدم اٹھا لیا اور بھارت نے شاید بیٹھ کے مینوورنگ کر لی، یہ ان کے قوانین کے تحت بتا رہا ہوں. رسک کیا تھا جو بات عامر نے کی ہے کہ وہ ڈیتھ پینلٹی انوالو ہے اور پاکستان کسی وقت بھی ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے، لہذا رسک بھی تھا کہ اس کو پھانسی دی جا سکتی ہے. 2 چیزیں. اور تیسری چیز یہ تھی، اسے اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو وکیل تھا اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اس کو یہ جو انڈین یہ نیشنل ہے، ہم اس کو اگست 2017 میں پھانسی دے دیں گے.
सो इन्होंने डेडलाइन भी दे दी उनको। मिनिमम 2000 अगस्त से तो इसकी जान बची हुई है, मतलब 2000 तो हम फांसी नहीं दे रहे, लेकिन अगस्त में दे दें, लिहाजा उन्होंने रोकनी भी इस पे थी। और थी अगली बात, जो चौथा उन्होंने पॉइंट इस पे आकर उन्होंने उठाया है कि पाकिस्तान ने हमें कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि इतनी देर में जब तक हम केस सुन रहे हैं आप उसको फांसी नहीं देंगे। पाकिस्तान ये कर सकता था। वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें ये कह देता जी ठीक है आप केस जरूर सुने और हम आप जब तक आप फैसला नहीं करते तो हम उसको फांसी नहीं देंगे, तो शायद वो स्टे ना करते और इस तरह रहता। लेकिन पाकिस्तान को आके वहां पे उनको अश्योरेंस देनी थी। सो बेसिक जो जहां पे फैसला हुआ है वो था आपको काउंसलर एक्सेस का। इस मामले पे मैंने और आमिर मतीन ने 10 अप्रैल को क्या कहा था वो अभी आप अगर उनको व्यूअर को सुनाए, ये लाख कहते रहे पाकिस्तान को, मेरा अभी भी ख्याल है कि इनको देनी चाहिए थी। मैं कहूं ना कहूं, आप तो इंटरनेशनल कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, उन्होंने कह दी। आप जरा वो क्लिप दिखाएं, वो हम कहते हैं जरा आज हम शाने बनने की, आज हमारा दिल चाह रहा है कि वी टोल्ड यू सो, जरा कौन को सुना। ठीक है, बिल्कुल 10 अप्रैल यही वक्त था जब काउंसलर एक्सेस से मुताल्लिक क्लास साहब और आमिर साहब की जानिब से क्या कहा गया था, वो क्लिप आप जरा देखिए। तो मेरा ख्याल अगर हमारा इतना सॉलिड केस है जो कि वो नहीं बना सकेंगे हुसैन मुबारक का, तो ऑल द मोर रीजन कि हम इसके अंदर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी अगर कर दें, अगर हमारा हम इतने श्योर हैं अपने हकायक और सबूतों के मुतालिक, तो बल्कि चाहिए ये कि उसके अंदर ये जो हमने एकदम कह दिया है कि जनाब हमने वो बस मिलिट्री ट्रायल कर लिया है और जो है बस काफी है, तो एमनेस्टी का भी बयान आ गया है फौरन के जनाब इसके अंदर जो इंटरनेशनल कवानीन होते हैं कि आप थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखें और थोड़ा सा दिखा भी दें कि जस्टिस क्योंकि हमारी हिस्ट्री में रही है, तो वाई नॉट अगर उसमें हम थोड़ा सा उनको भी एक्सेस दे देते और हम अगर श्योर हैं कि जनाब हमारे पास ये सबूत हैं, तो उससे इंटरनेशनल ओपिनियन जो है कल को, ये तो हमारा ख्याल है, इंडिया का अपना ख्याल है, जज इसको जो करना है वो दुनिया ने करना है, तो दुनिया की तसल्ली के लिए कोई हर्ज नहीं है कि जहां 10-10, 12-12 साल हो गए हैं मुंबई का फैसला नहीं हुआ, तो इसका हमने जो है एकदम से ही कर दिया है। और इंडिया का ये कहना है कि जी हमें तो ये भी नहीं होता पता कि ट्रायल शुरू हो गया है, तो दूर की बात है, तो वाई नॉट अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा उसको ओपन भी कर दें और अब भी अपील की जा सकती है और अपील के अंदर ये दिखा दें, अगर हम श्योर हैं तो कोई हर्ज नहीं है। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान को चाहिए था पहले एक उसको फर्स्ट ट्राई के तौर पर ये केसेस, ये सारे एविडेंसेस अब यूएनओ में लेके जाते, वहां रोरा डालते, क्योंकि पूरी दुनिया में हमें बांट दिया गया है जी ना पाकिस्तान दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के साथी है और इनकी जो जमीन है वो इस्तेमाल होती है। तो आपके पास एक मौका आया था एंड वी थिंक कि हमने अज्यूम कर लिया कि अब तो फैसला हो गया वहां से मिलिट्री कोर्ट से कि जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, तो ये एविडेंसेस पूरी दुनिया के साथ हमें शेयर करने चाहिए थे, वहां भी करते। यहाँ पे आप उनको जो ये उनके फॉरेन ऑफिस, उनके फॉरेन एम्बेसीज हैं, अब वैसे तो बुला लेते, पनामा पे ब्रीफिंग के लिए बुला लेते हैं, फलां चीज पे ब्रीफिंग के लिए बुला लेते हैं, मेरा इमेज खराब ना हो, तो इस पे भी ब्रीफिंग एक उनको करके देते, कलभूषण साहब के दिखाते कि ये इसके एविडेंसेस हैं। आपको फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एविडेंसेस हमें दिए गए हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम उनको यूएनओ में लेकर जाएं। 7 दिसंबर 2016 की बात आप कर रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। सो अभी भी आई होप कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको वहां पे उसकी पिटीशन उसकी जाएगी, चैलेंज किया जाएगा, और जैसे आमिर कह रहे थे और हम भी इस पे ज्यादा जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। क्या हमें भी नहीं था पता कि ट्रायल हो रहा है, मतलब पाकिस्तान के लिए, मीडिया के लिए बहुत बड़ी अचानक और बड़ी खबर है ये कि बम शेल की तरह आई है कि जी बड़ा फैसला हो गया है, और ऑल ऑफ सडन पूरे मीडिया को भी नहीं समझ आ रही थी दूसरे लफ्जों में कि हमने स्टोरी को टेकअप कैसे करना है, क्योंकि कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं की गई थी। सो ट्रांसपेरेंसी का ये तकाजा है, ये फेयर जस्टिस का तकाजा है कि जस्टिस न सिर्फ होना चाहिए, नजर होते भी आना चाहिए, बिल्कुल शो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अच्छे से वकील करके दें ताकि उनका बेहतर डिफेंस, उनकी साइड ऑफ स्टोरी। और अगली बात जो एतराज आ रहा है सबसे बड़ा, लास्ट में मैं कह दूं फिर हम उस पर जाएंगे कि आपको यहाँ काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए थी। जब आप ये कहते हैं एहतजाज किया, हमें नहीं दी गई, ये बनता है ना कि आप अगर काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे, पहले उनको एडमिट तो करने दें। आप उनको उनके एतराजात जो थे हमें दूर करने चाहिए थे। एक लीगल डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में आपको ये काम करने पड़ते हैं, वो भी देते हैं या उन्हें देने चाहिए, हमें भी देने चाहिए। जो बेसिक आपके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, मेरा नहीं ख्याल हम इसलिए दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि कैरेट वे हो रहा है, बड़ा ज्यादा एक तरफ पूरा एक यलगार सी चल रही है, रुक के सांस लेके अपना मफाद दे के करना चाहिए। ये है कि जस्टिस, ये 10 अप्रैल का क्लिप है, क्लासर साहब के काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए आप और आमिर साहब दोनों ने कहा था। अभी ब्रेक पे मुझे जाना है, अगर वाकई एविडेंसेस आपके पास मौजूद थे, इतने आप श्योर थे, तो यकीनी तौर पर एक्सेस देना आपके लिए बनता था। छोटे से ब्रेक वापस आएंगे। अब पाकिस्तान के पास मजीद कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वापस आके इस पर गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। क्लासी साहब, 10 अप्रैल को आपने और आमिर साहब ने जो बात की वही एक नुक्ता बेस बना और वक्ती तौर पर मौत को रोक दिया गया, लेकिन अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? व्हाट नेक्स्ट? ऑप्शन अभी भी मेरा ख्याल जब केस आगे चलेगा हमें कुछ और एम्बेरसमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। मेन यही होगा उनका एतराज कि उसको मिलिट्री ट्रायल कोर्ट एक क्लोज डोर उसमें उसका ट्रायल किया गया। जो लोग अजमल कसाब की वो देते हैं ना मिसालें कंपेयर करने की, एक तो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि अजमल कसाब को हमने नहीं माना था कि पाकिस्तान शहरी है, या उस पर उन्होंने मतलब ना हमने एक्सेस मांगी थी तो ना उन्होंने दी थी हमारी तरफ से, ऐसा मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई रिक्वेस्ट की गई। हम तो बिल्कुल फरीद कोर्ट को हमने जैम कर दिया था कि बंदा यहां रहते ही कोई नहीं है। अब वो अगला इतराज आ सकता है कि जनाब के ये क्योंकि ट्रायल फौजी कोर्ट में हुआ है जिसको ओपन नहीं था, उसको उसकी कोई डिटेल्स नहीं शेयर की गई। अब ये शायद हम वहां पे डिटेल्स शेयर करें, वहां पे आलमी अदालत के साथ जहां पे हमारे वकील साहब जाएंगे तो वो शेयर करें तो पता चले। अभी भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से उसको कुलभूषण साहब को एक जो राइट ऑफ अपील है उसके तहत ये चाहिए हमें कि उनको वकील करके हाई कोर्ट में अगली उनकी अपील बनती है या सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट अपील बनती है उनकी, हाई कोर्ट नहीं है जो आपके मिलिट्री कोर्ट्स हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट में उनका केस इनका वहां पे चलना चाहिए। वहां पे जो एविडेंसेस हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास या जो मिलिट्री ट्रायल वहां पे हुआ और उनके सामने जो एविडेंसेस रखे गए, अगरचे हमें यह कहा जा रहा है जो अब तक बातें सुनने में आई हैं कि जो कन्फेशन उनका स्टेटमेंट था उसी की बुनियाद पे मिलिट्री ट्रायल मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजा दी है। अब ये कन्फेशन पाकिस्तानी पुलिस के जो होते हैं अदालतों में तो नहीं माने जाते, फौजी जो उनके अपने हैं, अब मुझे उसका प्रोसीजर का नहीं पता वहां पे क्या होते हैं। दूसरी चीज हमें ये जरा जहन में रखना चाहिए कि आलमी जो रिलेशनशिप है ना, जो हमारा चेस्ट थम्पिंग शुरू हो गई है, ऐसे नहीं चलते होते। जैसे आमिर ने भी कहा एक बहुत बड़ी फिल्म उस पर बनी है जो रियल उस पर वाकयात पे बनाई थी, द ब्रिज ऑफ द स्पाइस, ये हॉलीवुड की ना टॉम हैंक्स की एक बहुत बड़ी फिल्म है कि अमेरिकन ने एक उनका पकड़ा जासूस पकड़ा, रशियंस ने पहले पकड़ा जो पिशावर अड्डे से उड़ा था, उन रशियंस ने पकड़ा एक पायलट को, बड़ा बेर से गैरी पावल, ये बहुत बड़ा उसकी स्टोरी है। और U2 का जहाज जासूसी का ले जाते हुए रशियंस ने गिरा लिया और काफी दिन चुप रहे कि ये बोलेंगे कभी वो करेंगे, वो बड़ा मशहूर वो था, वो बड़ा उसमें फिल्म बनी है बड़ी अच्छी खासी, बड़ी सारी फिल्म बनी है। बाद में उन्होंने दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के वो जासूस, एक उन्होंने पकड़ा हुआ था स्टूडेंट उनका उनके पास था, एक उनके पास, उन दोनों को उन्होंने ट्रेड ऑफ किया, उन्होंने बैठ के डील्स की। दुनिया के मुमालिक बहुत सारे ये डील्स करते रहते हैं। और तीसरी चीज ये एतराज फिर आएगा, ये आगे जो केस खुलेगा मुझे जस्ट एक एज ए लेमैन के तौर पर नजर आ रहा है, ये भी कहा जाएगा कि ये जो फैसले अनाउंस होते हैं ना ये इस तरह के, हमारी वजारत दिफा गायब हो गई है। थोड़ा सा सिविलियन टच रहने देना चाहिए था आपको कि वजारत दिफा ये अनाउंस करती कि कुलभूषण साहब का ट्रायल हुआ है, ट्रायल के बाद उनको ये फांसी दी गई है, ये केस के फैक्ट से, ये एविडेंसेस से, और हमने उस बुनियाद पे किए। वो जब ISPR की तरफ से आते हैं कि टोटल एक आइसोलेशन में केस जाता है तो आपके मुखालफिन को या दीगर लोग हैं उनको ये मौके वहां पे मिल जाते हैं। और मैं एक और भी बता दूं कि हमने ये समझ लिया है कि सारे केसेस हम वहां पे हारे हैं, शायद ऐसे नहीं है। एक पाकिस्तान के खिलाफ एक वहां पे एक रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, ये पाकिस्तान के खिलाफ गए थे इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि पाकिस्तान जो है ये न्यूक्लियर इसकी डिसआर्मामेंट की जाए पाकिस्तान के विद इन ए ईयर। इंटरनेशनल आर्मी कोर्ट ने मेरे को ये जो हमारे बिलाल साहब जो उनका नाम है उनका अहमद बिलाल सूफी साहब है, ये वकील थे, पाकिस्तान ने वो केस विन किया हुआ है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी केसेस जो है आलमी अदालत में कुछ लूज किए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के पास किए हुए हैं, कुछ आपको दिखाएंगे, डिटेल दिखा रहे हैं। ये केसेस जीतता भी बंदा रहता है, विन भी होते रहते हैं, जंगे जैसे बंदा हारते रहते हैं, जंगे जीतते रहते हैं, केसेस हारते रहते हैं, केसेस जीतते रहते हैं। जस्टिस खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अभी बहुत सारे कत्ल के कन्विक्टेड थे जिनको सेशन जज ने, जिनको हाई कोर्ट से सजाए मौत दी हुई थी, उनको उन्होंने जाके ये सुप्रीम कोर्ट ने आके एक्विट किया है। सो इतना ज्यादा आप उस जज्बाती ना हो, ये मुल्कों के तल्लुकात होते हैं, उनको डील करने दें, हैंडल करने दें, अपने केसेस को बेहतर बनाएं या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए। और इसमें मतलब फॉरेन ऑफिस हमारा गायब है, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेता। ये जो सबूतों की बात है, दीगर चीजें, ये मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट का काम है, उन्होंने सबूत देने हैं, वो फॉरेन ऑफिस को दें, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दें, वो वजारत दिफा को दें, जो आप दुनिया को दिखाएं या नहीं दिखाएं। मेन ब्लंडर जो था वो हम ये कमिट कर चुके हैं, वो यही था कि आपने कौंसलर एक्सेस उनको नहीं दी। और लास्टली इन मामलात पे इतनी, जैसे कहा है ना कि आपने वार हिस्टेरिया पैदा कर दिया है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार ये शुरू हुई थी ना, पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता शायद, क्योंकि पढ़ने की हमारे वो नहीं है। एक कत्ल हुआ था वहां पे सर यूगोस्लाविया में, वियना का ड्यूक था, वियना का ड्यूक, ही वाज विजिटिंग यूगोस्लाविया, वहां पे किसी ने उसको गोली मार दी। फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई, उसके बाद वहां लाखों करोड़ों लोग मारे गए, 5 साल तक जंग चढ़ी गई।
जंग इज अ डैम सीरियस बिजनेस, पर्टिकुलरली ये दोनों मुल्क करने की कोशिश करनी चाहिए। ये न्यूक्लियर है, इनको सिविलाइज तरीके से अपने डिफरेंसेस इनको सॉर्ट आउट करने चाहिए। अच्छा हुआ है कि आलमी बिरादरी दरमियान में पड़ गई है, ये दोनों मुल्क इस काबिल नहीं है कि टेबल पर बैठ के